بس صحیح، صرف بات کرنے میں حرج کیا ہے؟ بابا وہ ریتلا ناگ ہے، ریت جیسا دکھائی نہیں دیتا ہے. شیراز کا قتل ہونے گا اور FIR شاہنواز اور اس کے بیٹے کے خلاف کٹے گی. تم نے ہمارے اکلوتے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، ہمارے اکلوتے بیٹے کی. ابھی ہم اسے بھولے نہیں ہیں موسیٰ، اور تم ہمارا اعتبار ماننے آئے ہو. ایک اسمگلر کی بیٹی کو بہو بنا کر لائی ہیں آپ، پتا تو ہوگا آپ کو. کون اسمگلر؟ سیٹھ شاہ نواز سے بڑا ڈرگ مافیا کون ہوگا؟ یہ ہمارا سرکاری قرض ہے اور ہمارے پاس تمہارا ریکارڈ چیک کرنے کا سرچ وارنٹ ہے. ایک فون آیا تھا، اس نے اپنا نام نہیں بتایا مگر کہنے لگا کہ شاہ نواز خان ایک بہت بڑا اسمگلر ہے، ڈرگ مافیا سے تعلق ہے اس کا. بابا بس کر بیوی، گھرائی کو کچھ نہیں کہتے. میرے خلاف تعویذ جادو ہو رہا ہے اور میں کچھ نہ کہوں. ہم اسے خوشی سے تو نہیں رہنے دیں گے. دیکھنا اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اور زبان سنبھال کر بات کر، جانتا نہیں ہم کون ہے، ہمارا ہی کھاتا ہے اور ہم ہی پہ بھونکتا ہے. تو خود ان کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے. اماں کسی کی نظر لگ گئی. پہلے تو بہت خوش رہتے تھے، لیکن اب چپ سے رہتے ہیں، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے، کچھ چھپاتے ہیں مجھ سے. شاہنواز سے تو بات کرنی ہی ہوگی. وہ کون سا مانیں گے جو وہ کرتے ہیں؟ پھر بھی بات کر کے دیکھ لیتے. ایسا تو نہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سب سچ ہو. ہمیشہ آپ کو یاد کر رہے تھے، سلام کہہ رہے تھے. اپنی ماں سے ملی ہو؟ کیسی ہے؟ اماں بہت خوش ہے، نئے مکان میں بہت خوش ہے. بیٹھو. شانی سے ملنے گئی تھی؟ وہ درگاہ پہ سلام بھرنے گئی تھی تو اچانک شانی بی بی سامنے آ گئی. تو اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت؟ اب کوئی درگاہ پر بات کرے تو بات تو کرنی پڑتی ہے نا جی. بھاجائی، آپ کو معلوم ہے نا ان سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. شانی بی بی نے خود ہی بات شروع کی تھی. تو تمہیں اسے منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تم نوکرانی تھی ان کی، غلام تو نہیں تھی کہ ہر وقت ان کا حکم مانتی رہو. اس میں حکم ماننے والی کون سی بات ہے؟ تم ہماری بہو ہو، بھول جاؤ کہ تم کبھی وہاں تھی. اور باتیں کیا ہوئی ان سے؟ وہ بیچاری کیا بات کرتی، وہ تو اپنے لیے دعا مانگنے آئی تھی. ہائے ہائے، کیا ہمدردی ہو رہی ہے. اب وہ بیچاری ہو گئی. چاچی، ان کا رشتہ بھی تو کہیں نہیں ہوا نا. تو ہم کیا کریں؟ اگر ان کا رشتہ اب تک نہیں ہوا تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. آئندہ تم ماں سے ملنے نہیں جاؤ گی، سنا تم نے؟ وہ بہانے سے ملنے آ رہی ہے. اب شک کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا جی. اب میں شاپنگ کے لیے جاؤں گی تب بھی آپ کہیں گے کہ شانی بی بی سے ملنے گئی تھی. اور یہ بیچاری کو کیا ضرورت تھی میری شکایت لگانے کی؟ وہ نوکر ہے میری، کو مخبر تو نہیں. اب تم اس طرح بات کرو گی ہم سے؟ تو اور کیا کروں جی، وہاں پر تو نوکرانی تھی، یہاں پر تو غلام بن گئی ہوں میں. دیکھا اس کو. Why? We have already. Yeah? Shruti, what sort of language you are using today? Come, give. Go. Yeah. Oh, great. Okay, so, what is it? Yeah, it was. Oh, wait for a while. Wow, what a pleasant surprise, Ahmed Nawaz Khan, you are here? آج بیٹے اچھے موقع پہ ملے آج. کیوں بھائی، آج ایسا کون سا اچھا موقع ہے؟ آپ کو ایک خاص دوست سے ملانا تھا. ویسے تو آپ ہمیں ملنا پسند ہی نہیں کرتے. کہاں ہاتھ آتے ہیں آپ ہمارے ہیں؟
وہ بس آپ اتنی خبروں میں ہوتے ہیں کہ خبردار رہنا پڑتا ہے. No, it's not like that. ایسے بھی پبلک پلیس ہے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے, لوگوں کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے نا. ہاں نو, میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں, اس لیے کہ جس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں کبھی ڈرتا نہیں. Very witty. Come on, join me. Come on, don't hesitate. ہماری بہت اچھی دوست شہرزاد, جنہیں لوگ پیار سے شہری کہتے ہیں, شہری. And Sherry, the great Ahmed Nawaz Khan. Hi, nice to meet you. Hi, same here. آپ کا بہت نام سنا ہے. جی میرا تو کوئی نام نہیں ہے, مگر میرے بابا صاحب نے یہاں بہت نام کمایا. What a powerful business empire he has. تھینک یو جی. ابھی تو ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں. Yeah, that's right. Sherry, ہماری نئی نسل میں 21st سینچری میں بہت بڑے ویکلس کرنے ہیں, اس لیے میں نے احمد نواز خان کو جوائنٹ وینچرز کیا. I think that's great. In fact, I think that the youth have totally taken over. Yeah. But I must tell you one thing. This is on politics میں کوئی چیز خالی آفر نہیں ہوتی ہے. کون دشمن کب دوست بن جائے, God knows. ہیلو جی بابا سنگھ. جی میں پہنچ رہا ہوں, میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں. اوکے ساری جی, مجھے کہیں جانا پڑ رہا ہے, میرے بابا صاحب مجھے بلا رہے ہیں. ہم پھر کبھی ملیں گے. روک تو نہیں سکتے, لیکن میں منتظر رہوں گا آپ کا. بالکل جی. آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. مجھے بھی بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے. Right. Bye. Take care. Yeah, so interesting guy, isn't it? So shall we move now? Definitely. Come. Where are we going? Yeah. Let's have a walk. بیگم صاحبہ, یہ کنیارے کا بل ہے اور یہ بینک والوں کا بل ہے. دکھا, دیکھیں اتنا بل کس نے خریدی اتنی جویلری؟ دکھاؤ. ہائے اللہ, 3,25,000 کا بل جیولر کا. کس کی اجازت سے خریدی اس نے جویلری؟ اجازت کس سے لینی ہے, وہ تو ابھی بھی شاپنگ پر گئی نہیں ہے. اور یہ دیکھو 1,10,000 کا بل کریڈٹ کارڈ پہ. ہاں بھائی, یہاں کون کسی سے پوچھتا ہے, ہم نے تو ایسا کبھی بھی نہیں کیا. اور ان کو دیکھو, یہ لیں, ابھی بھی پتہ نہیں کیا کیا خرید کر آ رہا ہے. جاؤ اس کو بلاؤ, سب کچھ لے کر آؤ. ابھی بڑی بیوی آپ کو بلا رہی ہیں. اچھا یہ سامان اندر رکھو. وہ کہتی ہے سامان ساتھ لے کر آئے. کیا دیکھنا ہے انہوں نے؟ خبریں تھی انہوں نے چیزیں دیکھنی ہے. یہ سب کچھ تم شاپنگ کر کے آئی ہو, کیا لائی ہوگی؟ کچھ کپڑے ہیں, جوتے ہیں, کچھ میک اپ کا سامان ہے جی. ہاں, ساری حسرتیں آج ہی پوری کرنے کی, باقی زندگی نہیں ہے کیا؟ حسرتیں بھی کیا, کتنی بھی حسرتیں پوری کر لینا, تیری حسرت پوری ہونے والی نہیں ہے. آپ کا کیا مطلب ہے جی؟ کس شے کی کمی ہے تمہیں اس گھر میں؟ کیا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ کس سے پوچھ کر یہ تم نے خریدا ہے سب کچھ؟ اور یہ کریڈٹ کارڈ پہ کیا کچھ خرید لیا ہے؟ مجھے یہ سب چھوٹے صاحب نے دیا ہے. کب اس نے تمہیں یہ اجازت دی؟ اور کہاں جاتی ہو تم؟ کوئی دفتر ہے تمہارا؟ دعوتوں میں جاتی ہو یا کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے تمہاری؟ کس لیے اتنی جیولری اور کپڑا خریدا ہے تم نے؟ مجھے انہوں نے کہا تھا جو دل میں آئے لے لیا کرو. ہاں, اور تم نے اس بات پر عمل شروع کر دیا. اور یہ بل کون دے گا؟ اتنا بل پہلے تمہیں ہم نے کم زیور ڈالا ہے. آپ نہ دیں جی, آپ سے کسی نے نہیں مانگا. آخر میں چھوٹے شاعر کی بیوی ہوں. نوٹ درختوں پہ نہیں لگے ہوئے, کسی سے پوچھو کتنی مشکل سے کمائے جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ یہی رہنے دو, جاؤ تم اپنے کمرے میں. جب دیکھو شاپنگ, جب دیکھو شاپنگ. اور یہ ڈرائیور کو بالکل منع کر دو, میری اجازت کے بغیر نہ جایا کرو.
हटो भी। बाबा तमाम, मैंने तुम्हें मना किया था कि उस मगलर के बेटे नादिर से नहीं मिलना। नहीं बात है, वो महज इत्तेफाक था। मुझे एक पल की खबर मिल जाती है बाबा, हर जगह मेरे लोग हैं। तुम नहीं जानते कि तारिक शेख के दफ्तर पर छापा पड़ा है, अभी उसकी रिपोर्ट आनी है। बस ही छोटी सी तो दुनिया है, किसी भी मौके पे दोस्त दुश्मन तो मिलते ही रहते हैं। बेटा तुम ऐसा करो, तुम यहाँ की नजाकत को नहीं समझ सकते, तुम कराची वापस चले जाओ। बाबा ऐसे ही समझेगा ना, वैसे मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात तो नहीं हुई। आपका जो हुक्म बाबा साईं, मैं चला जाऊंगा। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, आजकल दुश्मनों का दौर नहीं है, आजकल समझौते होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, जैसे सियासत में होते हैं। आजकल सियासत में कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं। अरे बाबा क्या अक्ल की बात की है। हम मोटी अकल के लोग हैं बाबा, पुराने तजुर्बे को मानते हैं। बुजुर्गों की बातों में जवानों की अकल होती है, और जो शायद अच्छी नहीं लगती वो अच्छी भी नहीं होती। बाबा अक्ल की बात की है आपने भी। बाबा गनी, तुम ये बताओ, तुम किसके साथ हो? अब मैं तो अक्ल के साथ हूं सही। बात सही ठीक है, अगर आपको मेरी सोच पसंद नहीं है तो मैं आइंदा आपके किसी काम में नहीं आऊंगा। ना बाबा ना, ठंडे 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 बाबा ठंडे। ठीक है बात सही, अगर आपको मुझ पर एतबार होगा तो मैं फिर ही आपके साथ काम करूंगा। इजाज़त बात सही। नहीं बाबा, बैठ नाराज नहीं हो। ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए तुम कराची चले जाओ, आराम करो, फिर आ जाओ। ठीक है बस। मजाई नजर नहीं आ रही, कमरे में होगी अपने। इसको तो बस कमरे में बैठने के अलावा कुछ काम नहीं है। वो जो सुना रहा है। सुनार? कौन सुनार? पापा तुझे उस दिन कुआं का जेवर लाया था। अम्मा वो आया होगा ना, ज्वेलर। अच्छा बुलाओ उसे। वालेकुम सलाम। जब तक हम आपको ना बुलाए आप मत आया कीजिए। आप जो बोलेंगे ऐसा बराबर ऐसा ही करूंगा मैं। मगर पहले आपने ऐसा नहीं किया है। अभी इधर हमारा बिल लेने के वास्ते आए हो, मेरा इधर बिल निकलता है। मालूम है मुझे, मैं बिल नहीं दूंगी, जेवरात वापस करूंगी। अभी ऐसा तो होता नहीं है ना, जो माल बिक गया वो एक दफा बिक गया, उसको वापस नहीं लेता हूँ मैं। अरे भाई सोना है, कोई सब्जी तो नहीं है, तोड़ लेना। आप तो धनी लोग हैं, वापस क्या करना? अभी पैसा नहीं तो मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं हाँ, पता चल गया होगा ना चूल्हा है, इसलिए जल्दी जल्दी जेवर पहन रही। मैं तैयार हो रही थी कि छोटे साईं आ रहे हैं। अगर आवाज के आने की खबर इसको कितनी जल्दी मिल जाती। बस बस, जो पहन लिया सो पहन लिया, ये सब कुछ मैं वापस कर रही हूँ। अब मैं ये तू पकड़। ये लो अपने जेवर, बाकी हिसाब में बाद में दूँ। और आइंदा मेरी मर्जी के बगैर किसी को कोई शय दी तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। ठीक बोला, बराबर बोला। अच्छा मैं भी जाता हूँ। जाओ। सलाम। तो वालेकुम सलाम, खैरियत से आ गया। तुम कब आई हो? बस 2 दिन हो गए यहीं पर। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब खैर मेरे।
बेटा खाना लगवाऊं? नहीं अम्मा, मैंने जहाज में ही खा लिया था। अच्छा ठीक। क्या बात है? मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? ना सलाम ना दुआ। अपनी अम्मा से पूछो ना, जिन्होंने सारा जेवर मुझसे ले लिया है, सारी चूड़ियां मुझसे ले ली है। मैं ये भी नहीं मालूम कि कोई सफर से आता है तो क्या करते हैं। जाओ, ये सामान लाया हूं, जो चाहिए ले लो, इसमें सोने की चूड़ियां भी हैं। जाओ। क्या ले लूं? फिर सारा कुछ छीन लेंगी वो मुझसे। तुम्हारी नीयत भर जाए तो बता देना, ले लो जो लेना। जाओ। मैं तो नौकरानी बन के इस घर में आती तो अच्छा था, अब तो पता ही नहीं चलता इस घर में गुलाम हूं या मालकिन हूं। तुम्हारी इन बातों के लिए ना मेरे पास वक्त है ना दिमाग, समझी? हेलो हेलो हेलो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? हेलो। कौन है? पता नहीं अम्मी, कुछ बोला ही नहीं और फोन रख दिया। वही होगा, और कौन हो सकता है? मुझे तो डर लग रहा है। कुछ नहीं अम्मी, आप डरे नहीं, जो भी होगा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। सही बात है कोई भला, जात की कोड़ किल्ली, अब खान का मालका हमको आकर दिखाएंगे, हमारे मुंह पर लगेंगे। हुआ क्या है? सही सही हमला किया है मुझ पर, सब जानते हैं, जलने लगे हैं मुझसे। अब मैं आपका साला हूं ना, कोई कमी तो नहीं हूं ना। बाबा बात तो पूरी करो ना, हुआ क्या है? सही में तो आपकी वजह से खामोश रहा, नहीं तो मैं दांत तोड़ देता। मैं कोई आम आदमी तो नहीं हूं, अब तो आपके खानदान का आदमी हूं ना। तू घड़ी घड़ी एक ही बात किए जा रहा है, बात तो बता, हुआ क्या है? सही सलाम। क्या हुआ? क्या किया तुम लोगों ने? सही हम आपके पांव की जूती है, और सही आपके पांव की जूती की भी तो इज्जत होती है। बस साईं, इसी बात का हमको ताना मिलता है, और इस जूती का मजाक भी उड़ता है साईं। समझा नहीं मैं। सही अब आपके नौकर हैं, आपकी रियाया है, मान लिया, लेकिन कोई हमें बेइज्जत करे, कोई हमें इस बात का ताना दे, ये कहाँ का इंसाफ है? तो अब बात क्या हुई है, पूरी बात करो। बस साईं अब क्या कहें, ये फरीद की हमशीरा, मतलब आपकी बेगम साहिबा ने, सही उन्होंने मेरी बीवी को बड़ा बेइज्जत किया है। सब तो मत है, आपकी इज्जत के मुताबिक कैसे बातें कर रहा है? सही हम आपके नौकर हैं, आप भले हमें बेइज्जत कर ले, मगर हमें गरीबी का ताना न दे। बस बस, आइंदा तुम लोगों ने फरीद से बात नहीं करनी। मेरे और मेरे खानदान के बारे में किसी ने कोई बात की तो उसकी जबान निकलवा दूंगा मैं, समझे? चाची, ये देखो, ये छोटा सा ही मेरे लिए लेकर आया है। तुम जितनी बार भी मेरा जेवर छीनोगी ना, हर बार मुझे लाके देगा। और भी बहुत सारा जेवर है, तुम कहो तो मैं दिखाऊं? अम्मा देख रही हो, अदा नवाज ने तो मुझे शादी पर भी इतने तोहफे नहीं दिए थे। इसके लिए कितना कुछ लेकर आया। अरे ये तो नदीदी है, दिल नहीं भरता इसका, इसीलिए लाया होगा वो। तुम्हें जो कुछ चाहिए अपने मियाँ से कहो ना, कि भाइयों की इतनी ड्यूटियां नहीं होती हैं। देखो अम्मा,
किस तरह फालतू में जबान चलने लगी है इसकी? तो फिर जलती क्यों हो? मेरा मियाँ मेरे लिए लेकर आया है, मेरे लिए ना लाए तो फिर किसके लिए लाए? अम्मा, पकने दे से। कभी मोरी की ईंट महलों में लगी है क्या? तो चाची, तुम्हारी बेटी किस महल में जाके लगी है? अम्मा, इसलिए आई हूं मैं यहाँ पर कि मैं इससे ताने सुनूं। और वो किस नीच है जिसे हम खुद पूरे से उठा के लाए, ये मुझे बात तो सुनाएगी। क्या हो रहा है सब कुछ? कोई नीच हो या कूड़े से आया हो, जरूरी है बात को ये बात नहीं है। तुम्हें यहाँ का बहुत पसंद नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। इसके लिए बहन पर गुस्सा हो रहा है, इसके लिए जिसने मेरी बेइज्जती की है, इसके लिए तोहफे लाए हो जो मुझे चोटी के बराबर समझती है। बस अम्मा रहने दो, अब कभी नहीं आऊंगी मैं इस घर। अब मैं नहीं चली जाऊँ, अब मेरी महिला को रहना। मेरी वजह से हो रहा है सब कुछ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना, तो सुन लो गौर से। मैं इसे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। चलो तुम्हारी यहाँ जगह नहीं, यही रहेगी। गलती थी मेरी, सजा है ये मेरी, यही रहेगी। खैरते है बीबी, और यहाँ अब इसकी जगह कहीं और नहीं है, यही रहेगी ये। मुझे ताना देते हैं कि मैं इसे कहीं से ले आया। हाँ तो ले आया ना, क्या करता मैं? मुझे किसी ने मौका नहीं दिया सोचने का, मुझे मोहलत नहीं दी। क्या करता मैं? किसी की शक्ल मेरे सामने थी, यही थी मेरे सामने, हमेशा मेरे सामने आ जाती थी, मेरे रास्ते में। पागल हो गई है, अपनी औकात भूल गई है, औकात भूल गई अपनी। जी आप क्या कह रहे? बीबी ये सब क्या है? ये नहीं बताएगी, इसे तो पता ही नहीं है कि क्या हो गया। आप हौसले से काम लें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बीबी सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम नहीं संभाल सकती माई शर्मा, जो कुछ हुआ है, मगर ये संभाल सकती थी, संभाल सकती थी।
बेचारी उसे कहाँ ले गया है? इलाके में सबको पता चल जाएगा। बचाई, बचाई, जल्दी इधर। ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले, हमें हवेली जाना है। मैं भी गाड़ी देखती हूँ। जल्दी कर, जल्दी आओ, जल्दी। वो आशा बीबी को बंगले से निकाल दिया, छोटे वहाँ खुद हवेली में लेकर आए। सुना तलाक भी हो रही है। तूने किससे सुना? ये सारे इलाके में बात फैली हुई है। आशा हवेली में है। कक्कर पे अंगूर नहीं लगते, वो कक्कर ही रहता है। आखिर जहाँ की खाकती ना वहीं पे पहुँची। तुझे कुछ पता भी है या इन्हीं अंदाजे लगा रही है तू? मैं सच कह रही हूँ, छोटे वहाँ बड़े गुस्से में है, खुद हवेली में लेकर आए। कोई बड़ी बात हुई है? कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी और तुम खाम का हवा में वट्टे मार रही हो। किसी अंदर के बंदे ने मशहूर किया है, या हो गई है या होने वाली है। उसके लक्षण आबाद होने वाले थे ही नहीं। अरे हम तो हवा में सूंघकर बात की तह तक पहुंच जाते हैं। रोज रोज के बाजार के फेरे, रोज रोज लश-फश जेवर, कपड़े और परफ्यूम्स। अरे कोई अंधेर थोड़ी है, आखिर आ गई ना औकात सामने। अम्मा जी आप खाम खा बात को बढ़ा रही हैं। अब पता नहीं ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं। बीबी जी आपकी जिद में शादी की थी, कोई मोहब्बत तो नहीं थी ना उसको? मोहब्बत का क्या है, बंदा साथ रहे तो हो ही जाती है। और अम्मा जी हमें क्या है, किसी की तलाक हो या मौज करे, हमने तो खुद रिश्ता तोड़ा था ना, कसूर तो हमारा था। क्या पता पुराने जख्म भर ही जाएं। नहीं, अब आशा को तलाक हो या ना हो, अहमद नवाज से ना किसी का रिश्ता हो सकता है और ना मैं होने दूंगी, बस। कहाँ है वो? अब तो आप खुश हैं ना? अंदर है वो। क्या करेंगे अब आप? हमने कब चाहा था? तुम्हें पता है तुम्हें क्या करती है? पता है मुझे। अदा हम तो उसके भले की बात कर रहे थे, हम क्या करते, वो हर बात का जवाब इस तरह से देती। तो मैंने जो कुछ किया ठीक किया ना, अब मैं और क्या कर सकता था? किसी से पूछा भी है तलाक हुई भी है कि नहीं? नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा और ना ही मेरी नीयत थी तलाक देने की। जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में हुआ है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, शरई मामला है। मैंने सुना है वो गुस्से में तलाक नहीं होती। अम्मा मेरे ससुराल में सबको पता चलेगा तो पता नहीं क्या कहेंगे वो लोग। तेरे बाबा साईं को इत्तला करनी जरूरी है। वैसे कल गनी भाई तो आ रहे हैं। नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बात तो फैल गई है। ड्यूटी में किसी ने मुझसे पूछा, बजाय से ड्राइवर और सब नौकरों को पता चल गया। हाँ तो क्या हो गया? मैं क्या किसी के घर से खाता हूं? क्या चाहता है तू? उसे यहीं रखेगा? तो और कहां जाएगी वो? मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। अब मैं क्या कह सकती हूँ? इतना गुस्से में आने की क्या जरूरत थी? अब उसे देखें, उसे हौसला दें, क्या करें अभी? नहीं, बैठा रहने दो उसे अंदर। किसी को क्या कह रही है वो बोली थी रास्ते में। पत्थर की हो गई वो, मर गई है अंदर से और बाहर से, कुछ नहीं बोली वो। अम्मा मैं देखती हूँ। नहीं, अभी कुछ दिन रहने दो। मेरा ख्याल है उसकी माँ को बुलाओ, वो उससे बात करेगी।
बात को यहीं रहने दीजिए। हमें दबाने से क्या होगा? शरह की बात है, पूछनी तो पड़ेगी बेटा। आपकी मर्जी है, जो चाहे करें, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, वो यहां से कहीं नहीं जाएगी, बस कहीं नहीं जाएगी। न जाने क्या होगा। शाबाश शाबाश बच्चों, पीरों की खिदमत किया करो, नहीं तो दोज़ख के अंगारों में दम तक हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना बाबा? हाँ, दम तक, हाँ दम तक। ये झंडे वाला पीर है मुर्शद, है मुर्शद सरकार। सही जिए डंडा दौरी, जिए चिमटा, जिए डेरा। सही, अब तो मान गए, आपको मान गए। हाँ, क्या हुआ? उच्ची सरकार के सदके में हमारा ताबीज भला निशाने पे बैठा के नहीं? झंडा साईं ऐसा वैसा, हाँ, ऐसा निशाने पे बैठा है कि सुना है कि काम हो गया है। हवेली से खबरनामा नशर हो रहा है, फरीद गायब, मामला सेट। अरे बच्चा हम ना कहते थे कि एक बकरे की मार है वो लड़की? अच्छा बताओ भला, तलाक हो गई है ना? सही झंडे शाह पीर, यूं समझो कि काम तमाम हो गया है। बत्तियां गुल, दम पुख्त और फरीद गैब। छुट्टी। हाँ ना, अभी भी सितारे कहते हैं कि रुकावट है, एक बकरा और। पीर झंडा साईं, बकरा तो मुश्किल है, कुक्कड़ से काम चलेगा? नहीं, बरदूत नहीं, मलून। अरे बाबा, कुक्कड़ की पहुंच इतनी ऊंची नहीं है जितनी बकरे की होती है। चलो उठो यहां से, वरना भस्म हो जाओगे सारे के सारे। उठो। पीर झंडा साईं, काम मुकम्मल हो जाए बकरा भी पेश कर देंगे। सही बात है? हाँ सही वादा। बस आप अपना काम जारी रखो। हाँ ठीक, वादा मान लेते हैं बाबा, वादा मंजूर है, लेकिन वादा पूरा करना। लो जाओ, हट, ये धुआं। पीर झंडा साईं, वजीफा जारी। ये धुआं भी तुम्हारे साथ जाएगा बाबा, मुकद्दर किस्मत लेकर। जाते जाओ बाबा। ये जदेशा, ये तेरा। अरे बाबा जी, ये दादौरी। हाजिर बाबा।